तो अब हम आइनॉक्स कोटियार में हैं, यहाँ पे एग्जीबिशन लगी है तो कुछ कवर करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं यहाँ किस तरह के स्टॉल है ताकि आप लोगों को पता चले। तो सबसे पहला जो स्टॉल मैं पहुँचा हूँ वो नरेंद्र जी के पास पहुँचा हूँ। ही इज़ फ्रॉम अनेबल इंडिया एंड ही विल एक्सप्लेन what he's doing, what they are displaying to the general public here. Narendra ji, over to you. Yeah, sure. So here, hi, my name is Narendra. I'm from Enable India. So here we are, kept few assistive devices. So we are demonstrating how a person with vision impairment can work using these kind of solutions. So example, as you all know that in many of the government departments, they deal with lot of hard copies, right? So now using like a keyboard devices, right? So the employees can read hard copies. So now I have a hard copy keyboard device set up here, and I have a document which is in Hindi also. So I can read that using these devices. Or what else? And apart from that, we do have like a solution for a low visions. So example, different type of magnifiers, right? Yeah. So like a Ruby device which is a digital magnifier to read, and as well चलिए, as मेरी वाइफ शी इज़ लो विजन, yeah, तो डू सम एक्सपेरिमेंट विद हर. sure. So this is the let me tell you the just a second, I'll get this Ruby device. Just give me a minute. See, these are the different magnification यूज classes, दिस मैग्नीफायर्स. right? See, this is also one magnifier, type of magnifier. So let me give you the digital magnifier. Just a sec. Digital magnifier. Yeah. Yes. It is here. Okay. So this is a digital magnifier. You can even zoom in how much you want. How much ever the For example, when you turn it on, it's like your phone camera, and you can use it with your contrast. For example, if I want to increase that zoom level, right? See, now it is increasing. Now it will decrease. If you want to change the contrast also, you can change it. For example, basically this device helps, right? You can keep it and do plus and minus, and then it will enlarge. ओके, समझ आया? Yeah, and also you can change the contrast as well. Like some people like to read with the black and white, yellow and blue. क्या कॉस्ट है इस डिवाइस की? This is from Freedom Scientific. Okay. I think there is a in Mumbai there is a Karishma Enterprises, right? So you can contact there, and Perfect. people can get the quotation on. Yeah. Yes. बढ़िया. हाँ. गुड, थैंक यू नरेंद्र जी हमसे बात करने के Thank लिए. you. Nice meeting you as well. तो पूनम जी हैं हमारे साथ अब XRCBC से. ये बताएंगी ये इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर डिवाइसेस हैं, कैसे यूज़फुल हैं किस किस डिसेबिलिटी के लिए. तो ये पूनम जी अब एक्सप्लेन करने वाली है. ओवर टू यू पूनम जी. Thank you, Danish. First is, how would a student with blindness read and write mathematics on computer? So for reading and writing mathematics on computer, earlier it wasn't accessible in Microsoft Word itself, but now it is accessible. So if you see Microsoft 2019 insert equation, it allows one to... Example 1 colon 9 divided by 3 equals 3. So whatever the screen reads, like whatever expression you type, the screen reader will read aloud. For typing, one has to go to insert equation. If I can show you one example. Example 2. When you press Alt equals, it displays insert equation on the screen. Then you type the expression that you want to be displayed. So for example, अगर fraction लिखना है \frac left brace a right brace right brace, then left brace b right brace, like that you would write. If I can show you. C left right brace left brace right brace. And then you press enter and up arrow to read.
A over B. It reads like how sighted student would read it aloud by looking at the expression. You can set speech settings to read it in different modes and ways. बिल्कुल. That is about mathematics on computer. The other thing is calculation tools. Have you heard about Taylor frame? या Yeah, Taylor frame is something that we recommend using as the calculation tool instead of reading and writing of mathematics, because you can't preserve what is written on Taylor frame. So for writing you can use Nemeth Braille, but for calculations you can use Taylor frame. The next is Cubarism. Cubarism is similar to Taylor frame. If you can shift a little right side, can you shift थोड़ा सा आगे? हाँ, thank you so much. Cubarism is similar to Taylor frame. Cubarism has cubes instead of types, and it has dots on it, braille dots, and you can place braille dots like how you would put types in a Taylor frame. Next is tactile diagrams. So tactile diagrams are the diagrams that are either created with craft material. You wanna touch it? दिखाना. Other diagrams that you can touch and feel. These are all craft material created diagrams. It has braille label for you to know what labels are, like what is the पढ़ूंगा diagram कुछ? about. Yeah. And then ये feet है. feet in modification of feet in birds. हाँ. Then these are created with craft material. There are also machine made diagrams. If you see this. Yeah. This is a machine made diagram. So you create a soft copy and then you print it on a chemical coated paper. Picture in a flash is the mechanism that is used that allows any black ink to raise. बढ़िया मस्त. Yes. Other than that is thermoforming. You have seen thermoform diagrams? या इसमें ब्रेल काफ़ी अच्छी आ रही है. Yes. क्लियर है ना. Machine- बाकी जगह पे machine वाला. हाँ 9 divided by 3 equals 3. Example 3. इलेक्ट्रिक सेल. Red X plus equals इलेक्ट्रिक red. सेल है. बल्ब. One can also use, if you can move a little right side, थोड़ा आगे चलो. ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं. You get graph paper. Can you show me your hand? ये है ग्राफ पेपर. We have created a tactile diagram using threads. ये है डबल बार. ये सिर्फ फर्स्ट बार. जो इनसाइड पैटर्न होता है स्टूडेंट्स साइडेड स्टूडेंट ड्रॉ करते हैं लाइंस. ब्लाइंड स्टूडेंट्स यूज करेंगे बिंदीज या फिर कुछ स्टिकर्स एक्सेट्रा और ब्रेल लेबल लगवाया हुआ है. जी. दिस कैन बी डन बाय द ब्लाइंड स्टूडेंट विद विकी स्टिक. ये थ्रेड से उनको टैक्टाइल डायग्राम, ये विकी स्टिक है. विकी स्टिक है ना, जो ये एक वुलन थ्रेड है जिसके ऊपर वैक्स स्टिक किया हुआ है. इट स्टिक्स ऑन एनी सर्फेस. सो अगर आपको स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ ड्रॉ करना है तो यू जस्ट पुट इट ऑन द सर्फेस लाइक दिस. इफ यू वांट टू शो अ कर्व देन यू पुट इट लाइक दिस. It's wonderful. Yeah, it sticks on any surface. One can use it for like showing any simple shapes to students. Teachers can use it, or sighted students sitting next to the blind student can show this on the spot. All the diagrams that are not available in tactile diagrams. If on the spot कोई mathematics का shape दिखाना है. तो ये XRCBC से मिल जाता है. विकी स्टिक्स ना ऑनलाइन अवेलेबल है Amazon पे. अच्छा. हमने Amazon से लिया. अच्छा. It's available. और ये टैक्टाइल डायग्राम. XRCBC के लाइब्रेरी में जो अवेलेबल है वो लोग ले सकते हैं लेंडिंग लाइब्रेरी से. उसका जो एक्सेल अवेलेबल है डेटा कौन सा डायग्राम्स अवेलेबल है वो हमारे वेबसाइट पे विच इज़ xrcbc.org. दैट पीपल कैन चेक विच डायग्राम्स आर अवेलेबल एंड रिक्वेस्ट. थैंक यू पूनम जी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. तो लक्ष्मी जी हैं अंतरचक्षु से हमारे साथ, वो बता रही हैं इस रूम में क्या हो रहा है. लक्ष्मी जी स्वागत है आपका. थैंक यू. क्या हो रहा है इस रूम में, बताएं हमें. यहाँ एग्जीबिशन चल रहा है. मतलब किसको मतलब ब्लाइंड पीपल को जिसको देख नहीं सकते ना, लो विजन है, वो सामान यूज़ कर सकते हैं. यहाँ टूल्स है जो यूज़ कर सकते हैं सामान. कौन कौन से टूल्स हैं यहाँ पे टूल्स है. यहाँ वेइंग मशीन है जो ऑडिबल है. आप बिना जो ब्लाइंड होते हैं, लो विजन होते हैं, दे कैन यूज़ दिस. यहाँ पे थर्मोमीटर है जो ऑडिबल है, जो चेक कर सकते हैं अपना थर्मोमीटर. और यहाँ पे एक वॉच है जो आपको टाइम बता सकता है. यहाँ पे ऑक्सीमीटर है. और यहाँ पे पेडोमीटर है, टॉकिंग पेडोमीटर, जो शुगर बता सकता है, ब्लड शुगर. और ब्लड प्रेशर है.
लोग Black- चौंक रहे हैं यहाँ पे आके जब देखते हैं इन चीज़ों को, तो नहीं ये नॉर्मल है ना, चौंक जो के नॉन मतलब- डिसेबल्ड आ रहे हैं। हाँ वो थोड़े चौंक जाते हैं, उनको एक्साइटिंग लगता है थोड़ा, हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ऑब्वियसली वो- ब्लाइंड को तो हाँ। मालूम है। एक्साइटिंग लगता है थोड़ा। तोलना अपना बाहर। मैंने एक बार तोला था अपना, इसने जवाब दिया, कहती लाइट वेट। चलिए, तो बढ़िया है। तो कुल मिला के टॉकिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे शोकेस किए जा रहे हैं लोगों के लिए, तो ये सारे हैं। तो ये आप लोग सेल भी करते हो या सिर्फ फॉर द एग्जीबिशन? एग्जीबिशन तो ऑब्वियसली सक्षम से आप खरीद सकते हैं। हेलो केशव जी, क्या बताएंगे इस एग्जीबिशन के बारे में? So as you know, Danish, we are from XR CVC department from St. Xavier's College, Mumbai. So we are actually here to create the awareness among the people and to create awareness among them, to create like what are the technology or assistive technology or the mainstream products. Some of the mainstream products are there. So how it can be helps a person with disability to use to make their life independent. That जो is, सुबह आप लोगों ने सेंसिटाइजेशन सेशन किए हैं, उसमें क्या किया है? वो तो आपको कृष्णा सर को पूछना पड़ेगा because Okay. I am in AT exhibition area. Okay, okay. You continue, yeah, please. So in this AT exhibition, there are different sections. Each section gives an insight to the people, like how the person with disability can make their particular section independent. Like example, right now you are standing on health and fitness. So in this portion, you can check your oxygen level with the help of oximeter. You मैं can- चेक करूँ अपना? Yeah, you can check. करना है ना? कम ना आ जाए। अरे आप तो स्ट्रांग है, आपको तो परफेक्टली आना चाहिए, आपको स्टेबल रहना है बस। कितनी देर में बताएगा ये? विद इन सम फ्यू सेकेंड्स। सो नाउ इट्स रेडी। SpO2 97, pulse rate 100.3. 97 परफेक्ट है ना? सो लाइक दिस, यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शन हैं, जैसे आपने हेल्थ एंड फिटनेस पे देखा, इस तरह स्मार्ट गैजेट का सेक्शन भी है। आए चले, वहाँ थोड़ा पे सा भी, बताओ थोड़ा सा। टेक्नोलॉजी है। सो मेरे वॉलंटियर आपको बताएंगे कि इस तरह है। Hello ma'am. हेलो, अपना नाम बताएं। Saili. साइली। Saili ma'am. Sir, we have Alexa over here. हमारे सामने Alexa है, जहाँ पर हमने नॉर्मल होम अप्लायंसेस को कनेक्ट किया है थ्रू दिस स्मार्ट बल्ब्स और इनको स्विचेस, हाँ स्मार्ट स्विचेस है। स्मार्ट प्लग्स है। तो इन्हें हमें घर पर जो भी सॉकेट है वहाँ पर हम कनेक्ट कर सकते हो और फिर उसको जो भी घर के जो नॉर्मल डिवाइसेस होते हैं होम अप्लायंसेस, जैसे कि गीज़र या फिर आपका फ़ोन का चार्जर वगैरह या फिर कैटल, लाइट, कुछ भी हो, वो आप इस स्मार्ट प्लग को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और- चार्जर भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, कुछ भी। तो फिर इस पर कनेक्ट करने के बाद आप एलेक्सा, थ्रू एलेक्सा या फिर अपने फ़ोन से भी उस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर चार्जर आपने लगाया है तो उनको थ्रू एलेक्सा वो ऑन कर सकते हो, स्विच ऑन कर सकते हो, स्विच ऑफ भी कर सकते हो। फिर हमारे पास सिक्योरिटी कैमरा है, सिक्योरिटी बेल्स वगैरह भी है। तो अगर आपकी डोर पर कोई आया है आपसे मिलने के लिए, तो अगर उन्होंने बेल बजाई तो आपको ऐसे नोटिफिकेशन आएगा, वो आपके फ़ोन पर भी आपको आ सकता है। बढ़िया। तो ये कहाँ से खरीद सकते हैं जिसको? ये सब रेगुलर और ये अमेज़ोन से ले सकते हैं स्मार्ट प्लग और वहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, बट आपके पास आसपास कोई शोरूम्स है या टेक्नोलॉजी शॉप्स है, उन लोग भी आजकल इस तरह प्रोडक्ट्स को सेल्स करते हैं। Right. और वो सिक्योरिटी बेल का ये है कि अगर कोई आया है आपके दरवाजे पर, आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे इंसान है जो बेड रिडन हो सकते हैं, एल्डरली पर्सन, तो उन्हें अपने रूम में घूमने की ज़रूरत नहीं है, डोर तक जाने की ज़रूरत है। जहाँ पर वो बैठे हैं वहीं से वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं उस इंसान से जो आपको जी, मिलने जी, आया जी। है। तो आपको अपने फ़ोन पर जब नोटिफिकेशन आएगा कि कोई आपको मिलने आया है, तब आपको वीडियो कॉल करने की एक ऑप्शन आएगा उधर, तो वो सिलेक्ट करने के बाद आप उनसे बात भी कर सकते हो। इंटरेस्टिंग। हाँ, अलेक्सा, आप देख सकते हो, आप उनसे बात मैडम कर सुन नहीं रही मेरी आवाज़? सकते हो। एलेक्सा,
too. अच्छा, साउंड नहीं किया हुआ इसका ना, मुझे नहीं आ रहा. So you can ask her to sing a song for you. Anything. Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Play Radio Udan from TuneIn. गाना चल पड़ा. देखिए, मैं सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ अपने रेडियो की. तो अभी ये म्यूजिक आप इंजॉय कर रहे हैं स्टॉल के साथ साथ. अलेक्सा स्टॉप. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अलेक्सा पे भी आप रेडियो डांस सुन सकते हैं. थैंक यू हमसे बात करने के लिए. वो स्टॉल है आपका कोई? अपने बाजू वाला अलग अलग रूम्स पे है. अच्छा. सो ये अभी जो खड़ी स्मार्ट होम अप्लायंस एंड हेल्थ एंड फिटनेस सेक्शन है. बाजू वाला सेक्शन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का. अच्छा. उसके बाद अलग अलग सेक्शंस आ गए. तो हम आए हैं अभी XRCBC की एग्जीबिशन में और जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है. अपना नाम बताएं. Yes, my name is Shazan DeMello. क्या हो रहा है इस रूम में? अंतरचक्षु करने के बाद अंतरचक्षु हमारा सेंसिटाइजेशन इवेंट है, जहां हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ के द्वारा लोगों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू फंक्शन जस्ट एज एफिशिएंटली एज योर as peers in the mainstream workspaces, mainstream educational systems. बस करने के अलग अलग तरीके हैं. और तो आर यू टेलिंग इट विद द हेल्प ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, कैसे यूज़ करनी है, कैसे वर्क प्लेस को आप? यस, बहुत सारे असिस्टिव एड्स अप्लायंसेस हैं और हमें बड़ा स्पेस दिया गया था, तो हम अलग अलग रूम्स में अलग अलग टॉपिक्स को कैसे इंक्लूसिव बनाते हैं वो डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. क्या लोगों का फीडबैक है देखने के बाद? सो मोस्टली जस्ट एज ऑलवेज वो इंटरेस्ट दिखाते हैं. ब्रेल स्क्रीन रीडर्स, आई मीन इवन दो ये people have been using this for ages, but to some audiences it still brings like that wow factor. Yeah, thank you so much for talking to us. No, thank you. तो अक्षिता फाउंडेशन के स्टॉल पे हैं हम. श्वेता जी हैं हमारे साथ. तो ये बताएं ये स्टॉल क्या है? अच्छा, सो अब आप यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं अभी, दिस इज द इंक्लूसिव कार्निवल स्टॉल एक्सपीरियंशियल जोन, जहाँ पे हम बोल रहे हैं. आप यहाँ पे जब ये जो स्टॉल आपको ये वाला है इंफॉर्मेशन डेस्क, उसके बगल में है जहाँ से आपका एक्सपीरियंस जोन शुरू होता है. एक्सपीरियंस जोन मतलब हाउ द ब्रेन ऑफ अ न्यूरो डाइवर्स पर्सन वर्क्स. तो उनके जो दिमाग में हाउ द प्रोसेसिंग चैलेंजेस creates his difficulty to perceive the environment around. तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस हम लोग रखे हैं हमारे लिए, जहाँ पे कोई भी पब्लिक, जनरल पब्लिक कोई भी आके जब वो लोग गेम्स खेलते हैं और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर एबल टू एटलीस्ट गेट अ पीप इनटू द ब्रेन ऑफ द ऑटिज्म ब्रेन, जो होता क्या है अंदर, क्या प्रोसेसिंग का चैलेंज चलता रहता है. तो यहाँ पे हमारे आपके सामने ये जो ऑडिटरी और आपका बोथ आर, वन इज़ ऑडिटरी एरिया, अनदर इज़ आपका ऑल फैक्ट्री हम लोग बोलते हैं, जिसको सेंस ऑफ स्मेल. तो एक सेंस ऑफ चैलेंज देने वाले थे ना, क्या चैलेंज देने वाले हो आप मुझे? अब मैं आपको एक साउंड में आपको सुनाऊंगी, मैं कान के पास में लेके जाके. तो आपको क्या करना है, एंड उसके बाद मैं आपको और कपल ऑफ साउंड्स देंगे. आपको उसमें से सिलेक्ट करना है सही वाला. ठीक है? ओके, ठीक है. तो मैं आपको सामने रखती हूँ. तो मेरी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती करवाने वाली हैं आप? नहीं. ओके, तो मैं अभी आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखिए. ठीक है? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपके पास सामने. ठीक है? मैं आपको ऐसे वाला आएगा, तो मैं आपको साउंड सुना रही हूँ कान के सामने. ठीक है? यही सेम साउंड आपको निकालना है. अब जब बोलेंगे जी हाँ मुझे मिल गया, फिर आपको हम मैच कराएंगे.
ठीक है, अब एक एक करके सुनूं मैं? हाँ हाँ, एक एक करके आप सुनो। ये तो नहीं है, ये सारे एक जैसे लग रहे हैं मुझे तो। हाँ, तो वही है, तो ये एक टेस्ट है। ये नहीं है, ये दो नहीं है। ओके, सब साउंड सबको ये भी सिमिलर नहीं है, लगेगा, ये भी नहीं है, मगर देयर आर माइन्यूट डिफरेंसेस। ये भी नहीं है, ये हो सकता है। चार हो सकता निकाल है, तो मैं साइड में रखती हूँ। ये नहीं है, ओके, ये 5 तो निकाल दिए मैंने। हाँ, ये हो सकता है, अच्छा हो सकता है, तो मैं इधर रख दिया। और लास्ट वाला है, ये भी नहीं है। तो अभी आप जो हो सकता है ये 2 है आपके पास। नहीं, 4 निकाले थे मैंने। अच्छा अच्छा, 4 डाले थे, अच्छा ठीक है। ओके, 4। ये नहीं है, ये को साइड कर दो। ये हो सकता है, ये है शायद। अच्छा ठीक है, ये कंफर्म आप बोल रहे हो? ठीक है, तो अभी 2 हाथ में आप लो दोनों को। हाँ जी। और ये वाला है यहाँ पे मैं रखी दिया अभी, सेम ये है? नहीं है। ये मैंने दिया आपको, ठीक है, आप ये ढूंढ के निकाले। अभी ये सेम है? नहीं है। हाँ, lost it. lost it. Interesting, that's very interesting. तो यहाँ भी माइनर डिफरेंसेस है। तो हम लोग ये एक्चुअली एक्सरसाइजेज हम लोग ग्रेडेशन के हिसाब से, वो मैच्योरिटी उनका जो होता है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी, कितना समझ पाता है बच्चा, उसके हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। वो एक्टिवनेस लाने के लिए, जो वो जो बोलते हैं ना ऑडिटरी मेमोरी, जो दिमाग पे रखना, जो सुना है दिमाग में रखना। तो बातें तो हो गया, मगर ये जो साउंड है, कुछ ट्यून वगैरह है, तो ये अलग अलग ग्रेडेशन में वो काम करता है टू इम्प्रूव द प्रोसेसिंग पावर। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ लिसनर्स को कि यहाँ पे स्टॉल पे मेरे को मैम ने एक साउंड सुनाया था एक डिब्बी में, तो मुझे 10 और डिब्बियाँ थी, रलता मिलता साउंड था, मुझे गेस करना था, मैं नहीं कर पाया। तो ये माइंड, आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाता है आपको। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉल है। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। सो वी हैव ए पर्सन फ्रॉम साइनेबल Communications. योर नेम? My name is Tarun Sarwal. हाउ आर यू एंजॉइंग दिस इवेंट? I love it. I mean, this is the first event of its kind in India, from what I can see, and there are many different events here, stalls here, things happening. So it's really good. What's your role or your organization role in this event? So what we do is that we provide live interpretation for deaf people in sign language over the mobile phone. Are you providing today? Yes, we're providing today, and we have 23,000 people who use this service on a daily basis, and we have some companies who also use this. Like Wow. Amazon is one of our clients, and they have our service in 420 of their. Can you share the email of your organization if anybody wants to avail the service, they can get in touch? Absolutely. So it is. My name is Tarun, TARUN Sarwal, SARWAL at signable signable.live. I know that many of your listeners are sight impaired, so they will remember. They have a superpower. Yeah. We will broadcast it on Radio Dan. Yeah, Thank you so much. Thank you. तो चलिए एक और स्टॉल पे बताते हैं यहाँ क्या हो रहा है। रुजिता जी हैं हमारे साथ। तो रुजिता जी बताएं ये स्टॉल क्या है और आप किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? I am Rujita Garge. I am the physiotherapist. I represent Goa Medical College Pediatric Neuro Rehabilitation Center. तो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडेड जो है वो हमारे NICU केयर से लेके अर्ली इंटरवेंशन और हाई रिस्क OPD होता है। तो जो बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं या हाई रिस्क फैक्टर्स के साथ पैदा होते हैं, उनका ध्यान हम NICU से ही रखना चालू करते हैं। तो NICU में हम बच्चों को कैसे पोजीशन करना है, कैसे हैंडलिंग करना है, कैसे ग्रेडेड सेंसरी इनपुट देना है, क्योंकि वो बच्चे का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है। जो हमारा मदर के वूम्ब का एनवायरनमेंट है वो बहुत सेफ होता है। अगर बच्चा जल्दी पैदा होता है तो वो जल्दी दुनिया में आ जाता है। तो NICU का एनवायरनमेंट बहुत अलग और चैलेंजिंग होता है। तो उसको कोप करना सिखाते हैं, कैसे कोपिंग करना है। उसको अगर वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए, उसको अगर न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए, जो कोई भी सपोर्ट चाहिए, डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर का एक होलिस्टिक फॉर्म ऑफ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद इम्यूनाइजेशन जहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे भी स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क इंटरवेंशन होता है। तो जो बच्चे जिनके ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे वो पैदा होने के बाद रोए नहीं है या किसका,
तो कान का स्क्रीनिंग होता है, बहुत सारे स्क्रीनिंग्स होते हैं। तो बेसिकली इट्स अर्ली इंटरवेंशन काइंड ऑफ थिंग। फिर वहाँ से बच्चे हमारे एक्सरसाइज सेंटर पे भेजे जाते हैं, जहाँ पे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑडियोलॉजी, कॉक्लियर इम्प्लांट। तो अभी आप लोगों को जागरूक कर रही हैं। यू आर टेलिंग द पीपल अबाउट द सर्विसेज दैट आर अवेलेबल अंडर वन रूफ ऑफ GMC फॉर ऑल द डिसेबिलिटी चिल्ड्रन. Great. That Thank nobody you. ever misses out on any sort of an early intervention because they do not know where to come. Absolutely, yes. Thank you so much for this. And thank you so much for talking to us. Thank you so much. तो अभी हम एक और स्टॉल पे हैं। प्रनीत जी हैं हमारे साथ, ये बताएंगे ये किस चीज़ का स्टॉल है। प्रनीत जी, स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पे। नमस्ते सर, ये हमारा मॉनफर्ड एकेडमी प्राइवेट ITI सेक्शन है, जहाँ पर हम लोग टेक्निकल एजुकेशन में और NIOS जो 10th और 12th और टेक्निकल एजुकेशन में हम लोग जो मॉनफर्ड ITI है वो हम लोग फिटर, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और गोदरेज का जो है ITI है वो हम लोग पढ़ाते हैं। हमारे पास दोनों है, जैसे कि जो 10th पास होते हैं उनके लिए NCVT प्लस SCVT। NCVT मतलब नेशनल बोर्ड का सर्टिफिकेट है, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, प्लस SCVT जो गोवा स्टेट बोर्ड का सर्टिफिकेट। तो बेसिकली आप कोर्सेज के बारे में बता रहे हो। Yes, 10th के बाद क्या क्या करना चाहिए। यस सर, हाँ सर। और इन कोर्सेज के बेस पे जॉब मिलती है बाद में। हाँ सर, जो गवर्नमेंट एफिलिएट सर्टिफिकेट है NCVT और SCVT, वहाँ पर आप नेशनल लेवल और गोवा जो सर्टिफिकेट है वहाँ पर आप लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और आपको काम भी मिल सकता है सर। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। So we have Hema ji with us. She will explain about Hamari Wani. Welcome, Hema ji. Hello, thank you. Hello everybody. So Enable Wani is a social networking platform for persons with disabilities. Here you can it can be person with disability, it can be their parents, it can be their friends, anybody. If you have any query related to persons with disabilities, you can record and ask those questions. If you have any information that you want to share with persons with disability, you can record that and share. And there are many people who have recorded their information which is running on the platform. You can actually listen to that information as well. So we have this in 4 languages: Hindi, Tamil, Kannada, and which is other one, Bangla. So Hindi number is 926. Yeah, again. Hindi number is 926 634 4222. That's the Hindi wala number. Great. तो हमारी वानी ने रूरल एरिया में एक रेवोल्यूशन लाई है। जहाँ पे इंटरनेट नहीं है तो वहाँ पर हमारी वानी का नेटवर्क पहुँचा है। एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग Enable India has done for the people. Thank you so much for that. Thank you. We were discussing with Dipesh sir about Hamari Wani as well. Okay, nice. So we have Mr. Cornelius. His name is very tricky. Okay, but you know, for Punjabis it's always difficult to pronounce the name. So Cornelius, what are you displaying to people? Yeah. So in my case, I have a Blimey software, a free software which will teach computer concepts to people with visually impairment. Okay, so initially what happens is, although many of them they may need keyboard orientation, that will be given initially to them, but then once they know keyboard orientation, you know, we can help them learn computer without any cost. Great. Yeah, so we cover many concepts, like from the basics, and then we go to advanced level like Microsoft Word. So it is a kind of CD or what? Like no, it's audio? not a CD. No, it's installation software. Installation software. Yeah. So we I have to it here install also, it. see. Yeah. This one. So this is just a first page that we have. Okay, you can read through all this, and then so in the second page, what happens is we have video tutorials as well, so that you know they can listen it first, and then they will understand it from here. How can people buy this? No, they don't have to buy. They just have to go to blimey.live. Can you spell, please? Yeah, BLIMEY.LIVE. Okay. Yeah, so they can download it from there. It's So new जो beginners हैं, they can learn with the help of this. This one. Yes. If they know keyboard orientation. Keyboard orientation. This yes. is awesome information. Thank you so much for sharing. Yeah, thanks so much. तो रेडियो उड़ान के लिसनर्स आपके लिए एक बहुत ही बड़ी बात है ये, जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर, तो यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर एज वेल। तो अभी हम स्टॉल नंबर 67 पे हैं, जहां बीटिंग ब्लाइंडनेस जो किताब हमारे शदाब भाई ने लिखी है, तो उसका स्टॉल उन्होंने लगाया है। 11 विजुअली इम्पेयर्ड की इम्प्रेसिव स्टोरीज़ है लोगों को जागरूक करने के लिए। शदाब भाई, इस स्टॉल में कैसा एक्सपीरियंस है और क्या फीडबैक है लोगों का?
एक्सपीरियंस अच्छा है, लोगों का फीडबैक भी बहुत सही है, लोग आ रहे हैं और कल से अब तक मेरी 60 से ऊपर कॉपीज़ जा चुकी हैं, अबाउट 70 कॉपीज़। सो पीपल आर नॉट अवेयर, लोग समझ नहीं पा रहे थे। कभी कभी एक दो लोग कुछ ऐसे थे कि विजुअली इम्पेयर्ड कैसे स्टॉल लगाएगा इतनी दूर से आके, लेकिन बहुत अच्छा है, अच्छा वर्ड जा रहा है, अच्छी अवेयरनेस फैल रही है विजुअल इम्पेयरमेंट की। कुछ लोग किताब उठाते होंगे, स्टोरीज देखते होंगे, फिर खरीदते होंगे जी, तो क्या उनका फीडबैक रहा आपके लिए? फीडबैक सबका पॉजिटिव रहा है, ज़्यादातर सबका पॉजिटिव रहा है। कुछ लोग पूछ के चले भी गए हैं और कुछ लोग जो हैं वो आए हैं और उन्होंने ली भी है, पॉजिटिव फीडबैक। जब आप आए थे क्या एक्सपेक्ट किया था कि कितनी किताबें बिकेंगी? हमने एक्सपेक्ट किया था कि लगभग 50 बिक जाएं तो फिर अच्छा रहेगा, लेकिन ये 50 से ऊपर चली गई हैं। तो मतलब शो इज़ हिट। यस। और ओवरऑल पर्पल फेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा जो है पूरा ऑर्गेनाइज हुआ है और काफ़ी सही है ये, और ये बाकी भी गवर्नमेंट्स को फॉलो करना चाहिए इसको, कि वो लोग भी करें, बाकी स्टेट्स भी। गोवा में पूरा एंजॉय हो रहा है फिर? यस, पूरा ही एंजॉय हो रहा है। थैंक यू शदाब भाई हमसे बात करने के लिए। मोस्ट वेलकम। तो अब हमारे साथ रमनीत सिंह जी है जो ब्रांच हेड हैं यूनियन बैंक के गोवा में। सर स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा बताएं अपने बारे में। सर मैं रमनीत सिंह हूँ, मैं वैसे पंजाब से बिलोंग करता हूँ और पिछले 2 साल से मैं गोवा में पोस्टेड हूँ। तो अब तो आपका दिल नहीं करता होगा वापस आने का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करता। तो मैराथन में हिस्सा लिया आपने? हाँ जी सर, आज कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था सर, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, सारा कुछ प्लान था अच्छे से। पहले 21 किलोमीटर वाला था, फिर 10 किलोमीटर वाला था, उसके बाद मैंने 5 किलोमीटर वाले में पार्टिसिपेट किया, तो वो तकरीबन 6:30 बजे शुरू हुआ था। और कितने बजे ख़त्म हुआ? तकरीबन 1 घंटा लग गया था सारे पार्टिसिपेंट ख़त्म करने में, मैंने 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले भी आपने कभी मैराथन में पार्टिसिपेट किया? नहीं सर, मैराथन में नहीं, मगर वैसे मैं मतलब फिजिकली जिम वगैरह मतलब रनिंग वगैरह नॉर्मल करता हूँ। मैराथन का एक्सपीरियंस कैसा था? ये इंक्लूसिव मैराथन था, सब भाग रहे थे? हाँ जी सर, बहुत अच्छा था, मतलब तो इतने लोग सब कुछ, और हर एक एज के मतलब बच्चे, कई पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 साल के बच्चों को भी लेके भाग रहे थे, और काफ़ी 60 से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन भी थे, वो भी भाग रहे थे। ओवरऑल पर्पल फेस्ट जैसे इवेंट कितने इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस के लिए? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। पर्पल फेस्ट तो हम स्पेशली इसीलिए इसमें मतलब देखने आए हैं, ये स्पेशल पीपल मतलब लोगों के लिए है जो वैसे हम हमें उनको नहीं, नॉर्मल स्ट्रीम में उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, मगर यहाँ पे उनका देख के क्या क्या उनका इनोवेशन हैं और कितने लेवल पे वो पहुँच चुके हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी हम स्टॉल नंबर 82 पे हैं। यहाँ यूनियन बैंक की एक्सेसिबिलिटी के ऊपर स्टॉल लगाया राहुल गंभीर साहब ने। राहुल गंभीर साहब को तो आप जानते ही हैं, टैब से एसोसिएटेड हैं और यूनियन बैंक में लंबे अरसे से ब्लाइंड लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी यूनियन बैंक ने, राहुल भाई बताया कि एक स्पर्श कार्ड लॉन्च किया है। ये डेबिट कार्ड है? जी, ये डेबिट कार्ड है। अभी ये कार्ड मेरे हाथ में है, तो ब्रेल में यू लिखा है ताकि आपको पता लग जाए कि यूनियन बैंक का ही कार्ड आपके हाथ में है, और किसी बैंक ने अभी किया नहीं है। और बैंक का जैसे 2 हिस्से होते हैं तो पता नहीं लगता कि स्वाइप किस साइड से करें, तो इन्होंने कार्ड की दूसरी तरफ से कट लगाया है जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको स्वाइप कहाँ से करना है। तो ये एब्सोल्यूट एक्सेसिबिलिटी, आप 1 सेकंड में अपना कार्ड पहचान सकते हो कि आपके पास कौन सा कार्ड है, और इंडिपेंडेंटली आप इसे स्वाइप भी कर सकते हो। और भी है स्टॉल में और कुछ इस तरह का? यूनियन बैंक के और भी हमने प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले किए। यूनियन बैंक नैप दिल्ली के साथ कोलैबोरेशन अभी एक कर चुका है, जिसमें नैप दिल्ली यूनियन बैंक के लिए ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स, जॉस के साथ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग को कैसे यूज़ किया जाए, ऐसे ट्यूटोरियल्स बना रहा है। और दानिश, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है। अगर आप देखें कि हमने सुना था कि पहले किसी एक बैंक ने ब्रेल वाला डेबिट कार्ड निकाला, तो उन्होंने कोशिश क्या करी कि नाम भी ब्रेल में लिखने की कोशिश की, लेकिन जब ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाता है, मास प्रोडक्शन में जाता है, उस वक्त ये चीज़ें सस्टेनेबल नहीं हो पाती हैं। तो यूनियन बैंक में हम करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूशनलाइज करें एक्सेसिबिलिटी को। तो उसके लिए हमने एक यूनियन एक्सेस सेल फॉर्म किया है, जो कि यूनियन बैंक की जितनी भी डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है, अगर आप वेबसाइट की बात करें, मोबाइल बैंकिंग की बात करें, और डिफरेंट चीज़ों के लिए अलग अलग पैकेजेस हैं उनकी बात करें, तो हम धीरे धीरे एक्सेसिबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हमारा ऐप है यू टोकन ऐप, उसमें हमने 100% एक्सेसिबिलिटी अचीव कर ली है। सो दीज आर द फ्यू इनिशिएटिव यूनियन बैंक की तरफ से। अच्छा, ये बताओ कि बहुत सारे लोग आए होंगे यहाँ पे, आपसे बात हुई होगी, प्रोडक्ट देखे होंगे, उनमें से बहुत सारे लोगों को तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब भी पता नहीं होता होगा।
तो उनका फीडबैक कैसा था और क्या वो सरप्राइज थे? तो हमें काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक मिस्टर विजय दुबे जी आए थे, तो उनको हमने दिखाया, तो ही वॉज ऑल्सो हैप्पी टू सी दिस डेवलपमेंट। राजेश अग्रवाल जी की जो सेक्रेटरी हैं MSJE के, राजेश अग्रवाल जी के साथ जब इंटरेक्शन हुआ तो ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड दिस। और रिजर्व बैंक से एक डिप्टी जनरल मैनेजर आए थे, उनको हमने दिखाया तो उन्होंने बोला कि वेयर इज़ द फीडबैक बुक। So we are maintaining a feedback book here, and he wrote a feedback about our accessibility initiatives. So we got very good response, and moreover sensitization भी बहुत हुआ। बहुत लोगों को पता नहीं था accessibility के बारे में, तो उन लोगों को काफ़ी जानकारी मिली about banking accessibility. Great, great. And most importantly, बैंक हर चीज़ को देखता है कि इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। तो हमारे बैंक को यहाँ पे काफ़ी सारे लीड्स भी मिले। कुछ लोगों ने क्वेरी की कि मुझे क्रेडिट कार्ड के लिए लोन, क्रेडिट कार्ड चाहिए, कोई एजुकेशन लोन के लिए पूछ के गया। तो एक अच्छा अवेयरनेस भी यहाँ से स्प्रेड हुआ और बैंक को बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिली। थैंक यू राहुल हमसे बात करने के लिए, क्योंकि अब समय आ गया क्लोजिंग सेरेमनी का। पर्पल फेस्ट हिट रहा, तो अब प्रस्थान करते हैं क्लोजिंग की ओर। और बहुत ही बढ़िया स्टॉल है ये। थैंक यू सो मच फॉर दिस।